So Nupur, please unmute yourself once and tell us more about the problem. What is the problem that you faced? I mean, you are facing and that you are trying to solve. Hi, good morning, sir. Good morning. Nupur. So, what I personally struggle is with task management. Like, I do get multiple tasks at a time, and I struggle which one to do first. And many a times I forget my tasks. So Okay. that is something I wanted to work on. Okay. So, what is the solution that you have figured out for it at this moment? Like, I have thought of a few things right now that. Uh, in the first interface we can have dates mentioned, like a calendar type thing mentioned, and I can plan my tasks accordingly. If I have to do something tomorrow, not today, then I'll add my task to tomorrow's date, and I'll add the start time too, so that it will automatically remind me that I have to start this task. And on one day, if today I have 5 tasks, so I'll add 5 tasks in my panel, and I'll prioritize them. I'll add category to them, like Are you which proposing have a calendar kind of a thing? जहाँ calendar में you are putting up the task at a certain time and date? not exactly the calendar. Calendar is just one part that it is showing me what all tasks I have for one day, Hmm. but it is more like a task planner for every day of mine. Like, if I'm adding 5 tasks for today, so initially I'll prioritize it by myself. Then Okay. but if I feel like that task number 2 is of more priority, so the cards can be swapped, and I can add it to the top, and accordingly it will I just want it will it should give me notifications accordingly that I have to do this. Got it. So have you drawn paper sketches for this? Yes, I did something, not pretty Can you sure. show us on the screen? uh, okay, like okay, I'll click a picture and I'll display it. Sure. In the meanwhile, everyone else, one by one, can come on stage and tell us, do you face a similar problem around task management and what can be the solutions for it? So, Sanskar, Yes, sir. yeah, you please tell us if you face a problem around task management and like, do you face a problem around task management first of all? Yes, sir. Sometimes I do. Sometimes I Okay. do feel like that I have to do some tasks, and like she said, no, I forgot to do some tasks, and some tasks just get posted and postponed on to next day and next day after day, and they can't be completed on work. That's all my problem. Got it. Got it. And so, how do you manage it currently? What I'm kind of thinking process do about you have? I wrote down the task by priority and assign the time limit that I should do from for 1 hour or 2 hour according to the task, and that's how I try to manage this. Okay, cool. Um, okay, Nupur is presenting, I think. Okay, so this is the sketch that Nupur has drawn. Yeah. Can you go on the sketch? Yes. Yeah. Yeah, we can see that. Just wait. Okay, so Nupur is saying that there's this kind of a calendar system on the top, like dates are being shown on the top, and as she adds a task, she can add a task by clicking this plus button. As she adds a task, she will be asked the task name, duration of the task. What all when you click the plus button,
Okay, so Hmm. here's how create new task works. Name, describe, date, start time, end time, and category. Okay. And Also the what kind of priority categories would you be creating for the task? uh, like if I'm doing multiple kind of tasks, like one is for graphics, other one is for marketing, so I'll be knowing that which one I have to do first, which is coming under which category. Like this is optional, maybe it won't work for everyone. Okay. So graphic marketing. And how can you add categories? Because say for instance, someone is using this, so he will have his own categories. So do you also So have a option to add new categories? yeah, they can add custom category here itself. Okay. So that screen is not you have drawn, you know, haven't drawn that Yeah. screen. Mhm. So name and describe name of the task and describe description of the task. Okay. And date, start time, and time. So like do you want it to be specific that you have to start the task at 3 p.m. and end the task at 5 p.m., or do you want to give it a duration? Like it should be like if I'm having 3 tasks for the day, I'll plan it like I have to complete this task in 2 hours. Like this Right. can be my deadline, that I'll start it at 10 o'clock. So if I have not started, if I have not added here that I have done this, I've started this. So So I think if that you part haven't I have started missed, it, that then I'll add it to the to do. task manager will start pinging you, giving you Uh, notifications. yeah, that you have to start this task. Okay. If I've Okay. started it, it And is how in will the task it is manager know that you haven't started or you have started the task? yeah, actually that part got missed out by me. There will be something which will there will be an option of to do or ongoing or completed, like this Okay. thing But must be added. how will the task land in ongoing or completed? Matlab, is there some button which you're gonna press, or is the, I mean, you're gonna open this app and Yeah, tell it? yeah, Okay, like we'll add it manually. cool. Great work, Nupur. I think you're right on track. And something that I want to tell everyone to observe here, what just happened in this short conversation I had with Nupur. She came up with the idea. She wanted to solve a problem of task management. She came up with the idea with her sketches. We just brainstormed on the features. We saw that some features could be further elaborated, and some were right on. And as a reviewer, when I was in a position of a reviewer and I was asking questions to Nupur, um, she stood, she took a stand around. Okay, I think this is another task that you're getting. So she stood for the features that she has made. I tried to derail her from her feature, but she stood for some of the features, and some of the features where she saw that that could be an value addition. She agreed and said that this is something that we can add. So this is going to be how you will be presenting your ideas to stakeholders above you, or reviewers, or your managers or bosses, because when someone starts to review your idea, they wouldn't know from where you have created the idea. So if you have created, I mean, a lot of times what happens is people are not able to take stand on the features that they have put in on the screens that they have created, and that's not a good presentation. So you have to take stand, but at the same time you have to be humble enough to accept if you see any value addition that can be further done. So कौन कौन ये समझ पा रहा है कि ये बहुत ही थिन लाइन है जहां पे आपको स्टैंड भी लेना है, असर्टिव भी होना है अपने आइडियाज के बारे में, पर आपको हम्बल इनफ भी होना है, मोडेस्ट भी होना है. इफ यू सी दैट ये चीज और ऐड करी जा सकती है या फिर ये इस तरह से चेंज करा सकता है, दैट्स हाउ योर आइडियाज विल गेट इम्प्रोवाइज्ड एंड परफेक्टेड. बिकॉज एनीवेज आप जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं, फर्स्ट स्क्रीन बनाते हैं, मल्टीपल स्केचेस बनने के बाद, मल्टीपल पिवट्स होने के बाद, आइट्रेशंस होने के बाद हमारे आइडियाज परफेक्ट होते हैं. कोई भी फर्स्ट आइडिया परफेक्ट नहीं बनाता, तो हम ऐसा सोचना भी नहीं है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया होगा. लाइक हियर शी हैज कवर्ड एड टास्क की पॉसिबिलिटी है.
बट ऐड कैटेगरी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये हमने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखा, और हो सकता था कि ये मैं भी बनाता तो मैं भी मिस आउट कर जाता। वैसे ही इन्होंने प्रायोरिटी कंप्लीटेड ऑनगोइंग के फिल्टर्स तो क्रिएट करे, लेकिन उसको मार्क करने के लिए कहाँ पे मार्क होगा उसकी स्क्रीन्स नहीं क्रिएट करी। तो ये सब हमने देखा कि हमेशा ऐसा ही होगा कि आप पहली बार जब बनाएंगे तो आप एक सर्टेन लेवल तक जाएंगे, उसके बाद आप एक और राउंड जब लेंगे तो ये वाला हम प्रोसेस में और ऐसे भी करते हैं कि से फॉर इंस्टेंस आई एम क्रिएटिंग screens for some project और big project है, तो I will take 4 hours की sprints लेता हूँ मैं। एक sprint में I will cover a few screens, then in my next sprint I will start from reviewing my own screens, जिससे क्या होता है कि I can see कि where didn't go further, जो मैंने review process करा वो मैं एक self review हो जाता है। एंड इस तरह की 4 hour sprints में हम अपने ही प्रोडक्ट को और improve और डेप्थ में जाते जाते हैं उसकी। So what I'm trying to tell you is this is a natural process, this is how it's gonna happen। आपकी पहली स्क्रीन्स एक सर्टेन लेवल ऑफ ए डेप्थ तक जाएगी, उसके बाद बी डेप्थ तक जाएगी, और सी डेप्थ तक जाएगी। तो आपको और इस तरह के प्रोसेस में इफ यू कैन इंक्लूड समवन, इफ यू हैव सम कलीग इन योर टीम, और इफ यू कैन ब्रेनस्टॉर्म विद अ फ्रेंड कि दिस इज द आइडिया दैट आई एम वर्किंग ऑन, और मैंने ये स्क्रीन्स बनाई है, then a lot of review can from there। तो अगर आपके एक्चुअल में क्लाइंट्स हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस होंगी है, तो उससे पहले ये सारा रिव्यू प्रोसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ करके और अपने अपने आइडिया को और परफेक्ट कर सकते हैं। और दैट्स हाउ गुड आइडियाज आर क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड। सो yeah, coming back to everyone, so संस्कार से हमारी बात हुई थी। शिवम, I would like you to come on screen, unmute yourself, and also guys अगर आप लोग वीडियोस ओपन कर सकते हैं तो प्लीज वीडियोस ओपन करें, because otherwise बहुत ही वन वे इंटरेक्शन लगता है मुझको। So everyone please open their videos if you can। So today I won't be able to because I'm taking this on PC. From tomorrow onwards, I will take on mobile and then I can open my video. Okay, others can, जिसके लैपटॉप में या मोबाइल में वेबकैम है, कैमरा है, आप लोग ओपन कर सकते हैं। Okay, शिवम says my internet is unstable। Cool guys, ठीक है। तो शिवम एक बार you can unmute yourself and tell us the problem that you are facing on a daily basis, or that you see around that you would like to solve। Or we can also continue discussion on the task manager, Shivam, if you feel that is a good problem to solve, or if you want to add your value inputs in that। शिवम unmute करके एक बार please इसमें आए। कहीं जैसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। शिवम, आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू प्लीज टाइप इन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। In the meanwhile, we will go to Tanisha। Hello, sir. Yeah, Shivam is here. Okay. Hey, hi Shivam। Hello, sir. Good morning, sir. Good morning। शिवम, so हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि you can either share a problem that you would like to solve in a daily context, जो आपको प्रॉब्लम अराउंड फेस होती है या लगती है, या हम टास्क मैनेजर वाली प्रॉब्लम पे और डिस्कशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू वुड लाइक टू सॉल्व? Sir, same problem. Sir, जैसा नुपुर नुपुर ने बोला वैसा ही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। ओके, जैसे आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? टास्क मैनेजर। थोड़ा और बताएं उसके बारे में। सर, टास्क मैनेजमेंट को वो करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया था बस। ठीक है, एंड इसके लिए सॉल्यूशन क्या प्रपोज करते हैं आप? सर,
शिवम कुछ तो सॉल्यूशन प्रपोज करें आप, कुछ भी जो आपको लगता हो, वेदर टेक्नोलॉजी के थ्रू, अगर ऐप के थ्रू सॉल्व करना है तो जैसा एक नुपुर ने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करा, दैट इज वन सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ और लगता है कि इसको इंस्टेड आप ऐसा भी सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं कि आप एक पेपर पे लिख के पेस्ट करना चाहते हैं अपनी वॉल पे, दैट इज ऑल्सो फाइन। उसको हम देख सकते हैं कि हाउ कैन वी मेक इट अ स्केलेबल सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अपना सॉल्यूशन बताएं। दिस इज द प्रोसेस गाइज। अगर हम आज सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स के, तो दिस इज सो यूएक्स यूआई डिजाइनर आपको बनना है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Sorry sir, no idea sir. ठीक है, you think about it. Tanisha will come to you. Tanisha, what is your solution to the task manager problem, or if you would like to discuss a different problem, please tell us. Tanisha, can you unmute yourself? Are you able to hear us? Can you type in the chat? Not sure if Tanisha is able to hear us. Cool. ठीक है guys, we'll move on from here and so हम जो इस क्लास में आज समझना चाह रहे हैं, हमारा काफी सारा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाया, बट ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम, यूजर से बात करना कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करना, डीप में उनको ऑब्जर्व करना और समझना उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसको डिफाइन करना उस प्रॉब्लम को, और वहां से फिर सॉल्यूशंस आइडिएट करना। और सॉल्यूशंस भी एक साथ बैठ के ही आइडिएट होते हैं, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके आते हैं और फिर सारे पर्सपेक्टिव्स जोड़ के हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडिएटिंग, सॉल्यूशनिंग वर्क्स। दैट इज होल वो ये पूरा यूएक्स प्रोसेस है। इसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर करेगा वही यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स रिसर्चर की तरह वर्क कर पाएगा। उसके बाद आता है यूएक्स वायरफ्रेम्स बनाने के बाद, अगर आप जब वो वायरफ्रेम्स आपको दिए जाते हैं अगर आप यूआई डिजाइनिंग के अंदर है, तो फिर वो वायरफ्रेम्स को आप कन्वर्ट करके और उनकी स्क्रीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं। दैट इज द यूआई प्रोसेस। दैट इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस है। अगर आपको यूएक्स में इन्वॉल्व होना है तो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट में, सॉल्यूशनिंग के पार्ट में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी मजा आएगा और तभी एक्चुअल में the client will see value out of your UX process. So I'm gonna share with you आज का presentation and हम अपनी class start करेंगे अभी। So are you able to see my screen, guys? Please type in yes in the chat box. Chat box tool. तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन थिंकिंग पे। सो प्रोडक्ट डिजाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन थिंकिंग, और आपने सुना बहुत बार होगा डिजाइन थिंकिंग अपने अराउंड। सो डिजाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है, एक तरीके से कुछ स्टेप्स मिला के एक प्रोसेस है जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम एनीवेज यूज करते हैं। जो अभी हमने जस्ट करा वो हमने डिजाइन थिंकिंग करी, बट हम उसको आज प्रोसेस वाइज देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है, इसके क्या स्टेप्स हैं और कैसे उन स्टेप्स पे आप वर्क कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व ऑलरेडी डिस्कस करी। हमारे पास अभी एक ही टास्क मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आई है, उसके अलावा और प्रॉब्लम्स आई नहीं है। असाइनमेंट्स, सो ये ईमेल आईडी आप सब नोट कर सकते हैं, और जो हमारे रोज के असाइनमेंट्स होते हैं वो इस ईमेल आईडी पे आपको सबमिट करने हैं। जैसे कि कल का स्केच का असाइनमेंट था, तो सबको अपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बना के सॉल्व करके और यहाँ पे सबमिट करना है। प्लीज नोट डाउन द ईमेल आईडी और टाइप इन yes in the chat box once you have noted it down. Cool. ठीक है। सो गाइस इस पे ईमेल करने हैं, और असाइनमेंट्स जो हो उसके आगे नंबर लिख के आप UI UX असाइनमेंट 1, UI UX असाइनमेंट 2, जिस डे का असाइनमेंट था, कल का असाइनमेंट जो था वो असाइनमेंट 1 है,
सो आप उस पर 1 लिख के सब्जेक्ट लाइन में इस ईमेल में भेज सकते हैं। ये दिस इज नॉट जस्ट कि इस पे भेजने से आपने एक टास्क पूरा करा है, बट आई विल आल्सो रिव्यू एंड सेंड यू सम कमेंट्स, तो आपका प्रोसेस भी इम्प्रूव होएगा एंड वी कैन फर्दर इंटरेक्ट ऑन दैट सॉल्यूशन ऑफ योर्स। सो प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर यूआई यूएक्स प्रोसेस। डिजाइन थिंकिंग की हम बात करेंगे, की स्टडी हम बाद में लेंगे आज। डिजाइन थिंकिंग की हम बात करने वाले हैं। तो डिजाइन थिंकिंग में ये 5 चीजें इन्वॉल्व होती है। आप जहां भी जाएंगे इसको अलग अलग वेज में कहा जा सकता है, बट ये 5 चीजें इन्वॉल्व होगी, जहां पे इट इज गोना बी 1 एम्पैथाइजिंग विद द यूजर। तो जैसे कि आज हमने बात करी टास्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स की, तो हमारा यूजर टाइप है इसमें स्टूडेंट्स, और अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो एम्पैथाइज करने का क्या मतलब हो गया, हम कॉलेज स्टूडेंट से जाके बातें करेंगे, उनसे समझेंगे कि एक्चुअल में वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं टास्क मैनेजमेंट के अराउंड। तो टास्क मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म हो गया, बट उसके अराउंड भी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, अभी वो क्या सॉल्यूशंस यूज करते हैं इसके लिए, और उसमें क्या गैप्स हैं। इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशंस क्या है मार्केट में। मे बी लोग डायरीज यूज करते हैं, कैलेंडर्स यूज करते हैं, या टास्क मैनेजमेंट एप्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो यूज करते हैं, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी कि रोज जाके टास्क ऐड नहीं करे जाते ऐप पे, या नोटिफिकेशंस देख के उस टाइम पे नहीं स्टार्ट कर पाते, या हमें एम्पैथाइज करते हुए कुछ समझ आएगा कि यार ये जैसे जैसे ऊपर आपने एक सॉल्यूशन बनाया, पर एम्पैथाइज करते हुए अगर आप और यूजर से बात करेंगे तो आपको समझ आ सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। इस तरीके ऑलरेडी कुछ एप्स अवेलेबल हो सकती है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना रहे होंगे जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल और चल नहीं रहा, वर्सेस आप ऐसा सॉल्यूशन बना रहे होंगे जो वहां उसको बेसलाइन लेते हुए हम इनोवेट कर रहे हैं। कल हमने बात करी इतनी सारी इनोवेशन के ऊपर कि हम पहले बेसलाइंस लेते हैं अपनी। सो बेसलाइन हो गया ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में क्या सॉल्यूशंस हैं, लोग ऑलरेडी क्या यूज कर रहे हैं, और इट डजंट ऑलरेडी ऑलवेज हैव टू बी अ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कि एप्स के थ्रू ही सॉल्व करा जा रहा है। इट कैन बी अ डायरी इज आल्सो अ सॉल्यूशन फॉर अ टास्क मैनेजमेंट। तो इस तरह के क्या सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या वर्कआउट कर रहा है, ये हमें सब एम्पैथाइज करने से ही समझ आएगा। एम्पैथाइज करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करके डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जनता बहुत कुछ कहती है। अभी आप जनता के पास जाओगे, आई विल टेल यू वन केस स्टडी की एक सुपरमार्केट में लोगों से पूछा गया कि सुपरमार्केट में वो लोग मिल्क सेल करते हैं, और उन्होंने लोगों से जाकर पूछा कि हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। आपको ये जो मिल्क सेल करते हैं, मतलब हमारे स्टोर से आप खरीदें, इस तरह का वो समझना चाह रहे थे कि उनके स्टोर पे क्या यूनिक प्रपोजिशन ला सकते हैं, वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपीज क्या बना सकते हैं जिससे लोग उनके स्टोर से ज्यादा खरीदे, तो एक्सपीरियंस में क्या चेंज ला सकते हैं। जनरली लोगों के आंसर्स आए कि मिल्क की प्राइस कम होनी चाहिए, मिल्क बहुत महंगा है, और ये लाइन जो आपके लगती है ये कम होनी चाहिए, हमें फास्टर डिलीवरी चाहिए। अब इसमें से सारी बातें जरूरी नहीं है सच हो, क्योंकि आप यूजर से कभी पूछो, यूजर कहेगा मुझे प्राइस कम चाहिए, हमेशा उसको प्राइस कम चाहिए, पर प्राइस कम करने से आईफोन सबसे महंगा फोन है, बट देन इट ऑल अगेन क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस इवन इन बाइंग द फोन। आप तो सब फोन्स अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने लग गए, पर उसका जो फोन का बॉक्स होता था, जिस तरह से खुलता है, जिस तरह से वो प्लेस्ड होता है, जिस तरह से इनिशियल स्क्रीन्स आती है, इनिशियली उसी फोन में इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट करा गया था। उसकी जो मार्केटिंग है, द वे इट सेज everything about iPhone कि when you buy this it will change everything, so वो जो पूरा प्रोसेस है उनका to create that messaging in your head and to create that experience when you buy iPhone to make it feel premium, उससे कितना यूजर इम्पैक्ट हुआ वर्सेस वो फोन्स जो सस्ते बेचने लग गए। तो यूजर कहता तो ये है उसको सस्ता चाहिए, पर यूजर डजंट नोज व्हाट ही वांट्स। लाइक कुछ बातें उसमें से निकल के आएगी यूजर इंटरव्यूज में से जो सही होगी, जैसा कि इन्होंने कहा कि डिलीवरी लाइन को कम करें और शॉर्टन करें डिलीवरी टाइम, क्योंकि लोगों को इनिशियली मॉर्निंग में हरी होती है। सो वो एक चीज थी जो पकड़ी जा सकती थी। तो अब इन्होंने और क्या करा, इसके एम्पैथाइज यूजर इंटरव्यूज के अलावा एम्पैथाइज करने का एक और तरीका होता है ऑब्जर्व करना। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा लोग क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, एंड उन्होंने जहां पे देखा कि जिस तरह के जो पैकेट्स थे जिन पे मोर पर्सनलाइज्ड जर्नी थी, या मोर कनेक्ट था कि कहाँ से कौन से फार्मर से आ रहा है या क्या,
इस तरह की चीजें उनको समझ आई कि दैट पर्सनलाइज कनेक्ट इज हेल्पिंग पीपल कनेक्ट मोर विद द मिल्क, क्योंकि लोग इस तरह से अवेयर भी हो चुके हैं कि मिल्क जो डेयरी में जो बल्क प्रोडक्शन में बनता है वहां पे बहुत सारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो एक सर्टेन वे में जा रहा होता है, क्रूएल वे में या फिर मास प्रोडक्शन में, नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ द काउस, वर्सेस जो एक इंडिविजुअल फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है। तो गुड मिल्क वर्सेस बैड मिल्क की एक डिबेट चलती है पूरी, तो लोग जिससे थोड़ा अवेयर हो चुके हैं। और ये मैं बाहर नीदरलैंड्स की आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, तो वहां पे लोग ऑलरेडी काफी अवेयर है इस बारे में। अब उस स्टोर ने क्या किया ये सब समझने के बाद, उस स्टोर ने ऐसे काउंटर्स क्रिएट करे 10, जिसपे अलग अलग फार्मर्स से जो मिल्क आता था उन फार्मर्स के नेम और फार्म एड्रेसेस और लोकेशंस मेंशन थी, और थोड़ी सी स्टोरी मेंशन थी कि ये फार्मर्स ने इनके पी गाय है और इन्होंने इस तरह से इनका मिल्क निकालने का प्रोसेस है और ये सब, और ये तो और फिर उन्होंने वहां पे बॉटल्स रखी, जिन बॉटल्स को लोग जाके खुद मिल्क ऐसे जैसे आइसक्रीम हम निकालते हैं वैसे मिल्क निकालने के ऐसे लीवर्स क्रिएट करे 10, और वहां पे बॉटल्स रखी और वो बॉटल्स जाके आप फिल कर सकते हैं एंड जाके फिर कैश काउंटर से आप उसका परचेज कर सकते हैं। सो दैट थिंग वर्स, और इसकी उन्होंने कॉस्ट इंक्रीज कर दी। That thing created so much value for everyone that people started coming more to the store. People started मतलब रेफरल होने लगा, इसका वर्ड ऑफ माउथ होने लगा। तो इनिशियली तो जो उसके आसपास के उस स्टोर के आसपास की ऑडियंस थी वही आती थी वहां पे खरीदने, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। बट लेटर ऑन वहां पे वो जो सर्कल था वो बड़ा होता गया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ होने लगा। लोग बोलने लगे कि यहाँ पे दूध खरीदने का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ग्रेट है। सो ये पूरा आप अगर स्टडी देखिए तो लोगों ने एम्पैथाइज करा, समझा क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व करा कि लोग किससे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, डिफाइन करा उस चीज को, सॉल्यूशंस आइडिएट करे। आइडिएट करते हुए वो एक कुछ और प्रोटोटाइप पे भी आए होंगे, पर फाइनली इस प्रोटोटाइप पे जिसपे वो आए, इस प्रोटोटाइप को उन्होंने जब लगा के टेस्ट करा तो उनके मार्केट में, उनके स्टोर में सेल्स ज्यादा बढ़ने लगी, कन्वर्जन ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों का सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ने लगा। फिर उन्होंने, क्योंकि इस ये प्रोटोटाइप वर्क कर गया, तो ये अब टेस्ट हो गया उनके 100 स्टोर्स थे अक्रॉस द कंट्रीज। सो उन्होंने इसको फिर रेप्लिकेट करके सारे 100 स्टोर्स में ये प्रोसेस को ले गए और उनकी सेल्स मार्केट शेयर इंक्रीज कर लिया उन्होंने। सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरी यूएक्स एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू उन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करा, इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, और ये रिपीटेड प्रोसेस होता है। जो ये प्रोटोटाइप और टेस्टिंग वाला प्रोसेस है, यहाँ से आइडिएशन वाला जो प्रोसेस है, आप कुछ आइडिएट करेंगे, 10 आइडियाज में से आप एक आइडिया को फाइनली जब 5-6 लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, फाइनली एक आइडिया को आगे लेके जाएंगे, उसकी प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग करेंगे, और आपको कई बार रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट क्रिएटिंग दैट मच इम्पैक्ट, नीडल मूविंग इम्पैक्ट नहीं है। जो आपकी केपीआई जैसे इस केस में सेल्स बढ़ना या लोगों का कस्टमर एक्सपीरियंस से डिलाइट बढ़ना, कस्टमर डिलाइट बढ़ना, सेटिस्फेक्शन बढ़ना नीडल था, वो नीडल अगर मूव नहीं करी, अगर इम्प्रूव नहीं हुआ, तो आप उस आइडिया को फेल करके दूसरे आइडिया में मूव ऑन कर जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज अ आइटरेटिव प्रोसेस। सो आई कम ऑन, आई विल टेल यू दिस इन अ मोर स्ट्रीमलाइंड वे। पर पहले किसको ये केस स्टडी में इंटरेस्टिंग लगी, किसको समझ आया और ये प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत चमका, प्लीज टाइप इन yes in the chatbot, or type in design thinking in the chatbot, DT. Sanskar says DT. Cool. So guys, great, happy to see that सबको चमक रहा है। सो इसको मैं और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन वे में सिंपल करके आपके लिए बता रहा हूँ डिजाइन थिंकिंग को, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग को लोग कंफ्यूज बहुत करेंगे आपको कि डिजाइन थिंकिंग ये होती है, डिजाइन थिंकिंग वो होती है। आप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, सबकी अपनी, IBM अलग तरह से डिफाइन करता है। बेसिक प्रोसेस अगर आप आज यहाँ पे बेसिक प्रोसेस समझ लें, तो ये डिजाइन थिंकिंग की टर्मिनोलॉजीज कुछ भी लिया है लोग, और इसमें बहुत सारी मॉडलिंग और लोग बहुत सारे कंसेप्ट लेके आते हैं कि डिजाइन थिंकिंग आपको ये करना है वो करना है। अगर आप ये बेसिक प्रोसेस समझ जाएं कंसेप्ट लेवल पे, तो
आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और यू वुड बी एबल टू क्रिएट योर ओन डिजाइन प्रोसेस। सो सीन क्या है कि इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग कंसेप्ट समझाता हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जहां पे जैसे मान लीजिए कि हमने प्रॉब्लम एरिया में अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग चालू करी, तो हमने यहाँ पे डिस्कशन चालू करा कि यार क्या प्रॉब्लम है कॉलेज में, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, टास्क मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम होती है, उस पर फिर और डिस्कशन करके हमने समझा कि यार उसमें भी ये डीपर लेवल पे ये प्रॉब्लम्स है। ये सब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब हम कन्वर्ज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो अब हम सारे फैक्ट्स, पैटर्न्स, डेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है उस डेटा की, कि एक ही बार कितनी बार लोग बोल रहे हैं, अगर 5 स्टूडेंट्स ने की प्रॉब्लम बताया, ये सबको हम कन्वर्ज करके लॉजिक के थ्रू समझ रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ क्रिएटिव वे ऑफ थिंकिंग, जहां पे हम अपना राइट ब्रेन यूज कर रहे होते हैं, एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, जहां पे हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे होते हैं। इन दोनों थिंकिंग प्रोसेस के यूसेज से हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। सो जब एक डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम एम्पैथाइज करते हैं लोगों से, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि हम अभी आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो हम कन्वर्ज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो हम पहले लोगों से जाके बात करी, यहाँ पे हमने, ये हमारा प्रॉब्लम स्पेस है जहाँ पे हमने लोगों से बात करी, समझा। उसके बाद हमने सब लोग, जो 5 लोग अगर इस प्रोडक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने आके उसको कन्वर्ट करके एक प्रॉब्लम डिफाइन करी। अब यहाँ पे डिफाइन होने के बाद, अगर हमारे उस 5 लोग हैं बोर्ड रूम में जो इस प्रॉब्लम पे आइडिएट करने वाले हैं, तो हम वापस डाइवर्जेंट थिंकिंग चालू करते हैं सॉल्यूशन स्पेस में, जहाँ पे हम सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पूरा ये प्रोसेस है, जो एक डिजाइन चैलेंज है, वहां से हम सॉल्यूशन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आइडिएशन कर रहे हैं, आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, उसके हमने बहुत सारे आइडियाज क्रिएट करे। अब इन आइडियाज पे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हो गए, उनमें से हमने कन्वर्ज करने के लिए क्या करा, कन्वर्ज करने के लिए कुछ आइडियाज पे हम फिक्सेट करें, उसके बाद उनके प्रोटोटाइप क्रिएट करें, उनको टेस्ट करा मार्केट में जाके। सो मार्केट में जाके, जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था कि जब वो हर्षेस की बॉटल थी, तो 5 तरह की बॉटल उन्होंने क्रिएट करके मार्केट में जाके सबसे 10 यूजर्स लाए, अलग अलग यूजर्स को भेजा उस रूम में और टेस्ट करवाया उनसे, और उनको उनके रिव्यूज और सर्वे उनसे फिल करवाया, और इस तरीके से उन्होंने देखा कि कौन सी चीज वर्कआउट करी है। तो ये प्रोटोटाइपिंग करके और टेस्टिंग हो गई, और आइटरेटिव प्रोसेस है। उनको कुछ समझ आया कि यार ये वाली चीज इस बॉटल में वर्क करी, पर ये वाली चीज इस बॉटल में वर्क करी, फिर वापस आइडिएशन पे गए, फिर वापस नया प्रोडक्ट क्रिएट करा, फिर वापस टेस्ट करा। इस तरीके से दे फाइनली कन्वर्ज ऑन टू वन प्रोडक्ट। तो दिस इज द होल डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है वैसे देखा जाए तो, पर क्योंकि हम इसको ब्रेक डाउन करके समझना चाह रहे हैं कि कैसे हमें डिजाइन चैलेंज से सॉल्यूशन पहुंचना है, दिस इज द होल प्रोसेस। इस प्रोसेस को अब हम और अगर थोड़ा सा देखें, जो हमारी हमने 5 टाइटल्स देखे थे, उस 5 टाइटल्स में क्या हो रहा होता है। तो जब हम एम्पैथाइज बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यूजर से जाके यूजर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यूजर को इंटरव्यू कर रहे हैं कि मेरा यूजर कौन है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या मैटर करता है, ये सब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिफाइन करते हुए हम फाइनली, जब हमने सब समझ लिया, तो हम एक अपना नजरिया डिफाइन कर रहे हैं कि भाई दिस इज द यूजर प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट ही नीड्स, एंड दिस इज व्हाट ही नीड्स, इस चीज को सॉल्व करना है। आइडिएट करते हुए फिर हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं लोगों के साथ बैठ के, टू कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज। प्रोटोटाइप करते हुए फिर हम 2-3 आइडियाज पकड़ के उसके ऊपर एक स्केच बनाना, या फिर उसके ऊपर एक स्क्रीन्स बनाना, मॉकअप बनाना वाली स्टेज होती है हमारी, और फिर हम जाके टेस्ट करते हैं कि ये आइडिया वर्क करा है या नहीं करा। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह से वर्क करता है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह से वर्क करता है। किस किस को समझ आ रहा है नाउ कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है और कैसे वर्क करता है, और इसके क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? प्लीज टाइप इन yes if you understand. किस किस को मजा आ रहा है कि यार इससे कितना इनोवेशन करा सकता है, किसको समझ आ रहा है? प्लीज टाइप इन इनोवेट। सुपर, हैप्पी टू सी आप लोग समझ रहे हैं, एंड इनोवेशन का एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सुपर।
ग्रेट, ग्रेट। तो गाइस, आज हम स्टूडेंट्स के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी, जो हमने जाके स्टूडेंट्स से बात करी, समझ आया कि स्टूडेंट्स फील डिस्कनेक्टेड लर्निंग ऑन जूम। बहुत बार वो कैमरा शाय हो रहे होते हैं या फिर इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। एक क्लास में तो क्या होता है, आप ऑलरेडी दिख रहे हो, टीचर्स को दिख रहे हो, आसपास के स्टूडेंट्स को दिख रहे हो, तो देन यू आर इन अ प्रेशर टू लर्न। एंड दिस प्रेशर हमेशा बुरा नहीं होता, दिस प्रेशर इज गुड। जैसे हम एक म्यूजिक क्लास में जाते हैं, अगर वही म्यूजिक क्लास में अपने लेवल पे घर पे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहा हूँ, सो आई माइट नॉट लर्न सो मच, बट मैं म्यूजिक क्लास में गया, वहाँ 1 घंटे क्लास में बैठा हूँ, टीचर ने मुझे बोला ये गाओ या फिर ये बजाओ, ऐसे ऐसे बजाना है, मैं 15 मिनट में आके देखूंगा। देयर इज अ प्रेशर इन माई हेड कि यार मुझे वो देखने वाला है, वो बता के गया है, आई हैव टू लर्न दिस, सो ही विल कम बैक एंड आस्क मी हाउ डज इट वर्क। सो दिस प्रेशर, ये प्रेशर स्टूडेंट्स जूम पे बहुत बार अवॉइड कर जाते हैं। हर आदमी प्रेशर अवॉइड करना चाहता है, पर प्रेशर अवॉइड करने की वजह से लर्निंग भी अवॉइड हो जाती है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, हाउ डू वी सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी पीपल थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम? टाइप इन नो प्रेशर या टाइप इन डिस्कनेक्शन, जिसको लगता है ये लर्निंग प्रॉब्लम है इन द ऑनलाइन लर्निंग स्पेस। ठीक है, किसी को नहीं लगता ये प्रॉब्लम है डिस्कनेक्शन की? इफ डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज टाइप इन डिस्कनेक्शन या फिर नो लिख दो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। ये you don't have any answers, cool, I'll move on to another problem. संस्कार से no, ठीक है, डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, cool. सेकंड प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी स्टूडेंट्स के साथ, शिवम से नो, सो डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमने भूल गए, फिर हटा दिया। तो ये देखिए, अभी एम्पैथाइज करने से, यूजर डिस्कस करने में ये भी समझ आया कि क्या प्रॉब्लम वर्कआउट करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है। प्रॉब्लम 2 हमने डिस्कस करी कि स्टूडेंट्स बहुत बार करियर चॉइसेस दे आर टेकिंग ड्रिवन बाय पीयर प्रेशर, क्योंकि क्लियरली उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा करियर उनके लिए सूटेबल है। और कैसे पता होगा जब तक 1 वो एक्सपोज नहीं होंगे अलग अलग करियर से, 2 कोई उनको काउंसिल नहीं कर रहा होगा कि डिफरेंट करियर्स में जाके होता क्या है। क्योंकि दूर से हमें करियर्स एक्साइटिंग लगते हैं कि इसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ वैसी है, पर हमें ऑन अ डे टू डे बेसिस उस लाइफ में, उस करियर में क्या काम कर रहे होते हैं वो नहीं पता होता, उस काम से हम कितना कनेक्टेड फील करेंगे ये नहीं पता होता। सो स्टूडेंट्स फेस दिस करियर चॉइस प्रॉब्लम। सो हु ऑल थिंक दिस इज वैलिड फॉर देम? प्लीज टाइप इन करियर चॉइस प्रॉब्लम और CCP। कूल, सुपर। तो गाइस, हमने देखा कितना कितना क्लियर है। अभी हमारे पास 5 ही लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हमारे पास और लोग अगर होते इसमें तो हम कितना क्लियरली से, अगर हम 100 लोगों का इंटरव्यू या सर्वे कर रहे हैं, कितना क्लियरली हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। मुझे साफ दिख रहा है कि सबको करियर चॉइस प्रॉब्लम है। अभी हम करियर चॉइस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे फर्दर कि कैसे इसको सॉल्व करा जा सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने डिस्कस करा, एम्पैथाइज, कि यूजर को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे अभी हम वो नहीं कर पाएंगे, पर यूजर को ऑब्जर्व करना कि क्या प्रॉब्लम होती है। सो से अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक कॉलेज में जाके अलग अलग लोग, यूजर को ऑब्जर्व करना, उनसे बातें करना, जनरल बातें करना, टू सी कि ये बात कितना बीच में आती है और किस तरीके से आती है। देन दूसरा तरीका है टॉक टू यूजर्स डायरेक्टली ऑन दिस पॉइंट ऑन पॉइंट। यूजर के इंटरव्यूज लो, सर्वेज रन करो, स्मार्ट क्वेश्चंस क्रिएट करो, जिससे यूजर के इसके प्रॉब्लम के अराउंड आंसर्स आ पाए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 ब्रेकआउट रूम क्रिएट करेंगे जिसमें आप 2-2 लोग जाके, क्योंकि हमारे पास 4 लोग हैं अभी, सो आप 2-2 लोग जाके डिस्कस करेंगे कि इस करियर चॉइस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आई विल एंटर 1 by 1 ईच ऑफ द ब्रेकआउट रूम्स एंड सी हाउ इज द डिस्कशन गोइंग। सो
Go ahead guys, I am creating this breakout room and यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. एंड व्हाट वी कैन डू इज, जो जो जब आप एक ब्रेकआउट रूम में जाएंगे तो जिसका अल्फाबेट लेटर पहले है नाम का, जो नाम में पहले आता है, वो क्वेश्चंस पूछेगा और दूसरा वाला आंसर करेगा. सो क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर उसको बनना है जिसका पहला जिसका पहला नाम आता है, और यूजर उसको बनना है जिसका दूसरा नाम आता है. तो सबको ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या? प्लीज टाइप इन यस सो दैट आई कैन क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स. क्या करना है आपको ब्रेकआउट रूम्स में जाके, क्लियर है क्या? So you need to ask, Nupur is asking what do we need to ask. Nupur, you need to ask कि आपको क्वेश्चंस लाइव में फ्रेम करने हैं कि थिंक कि आपको एक करियर चॉइस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप यूजर से क्या पूछोगे कि यार आपको ये प्रॉब्लम कैसे होती है, आप इसके लिए क्या करते हो, अभी आपने किससे बात करी है, उनसे बात करते हैं आपको क्या प्रॉब्लम होती है. हो सकता है यूजर आपको बताए कि कोई समझता ही नहीं मेरा अराउंड, किसी को पता ही नहीं है, मैं कैसे एक्सपोजर लूँ इस चीज का, जाके किससे बात करूँ मुझे पता नहीं है. या फिर लोग यूजर कहे कि कोई ऐसा वेबसाइट या कोई ऐप नहीं है जहाँ पे मैं सारे करियर्स देख पाऊँ कि वहाँ पे क्या होता है. तो या फिर कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो मुझे हेल्प करे समझने में कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और उस पर्सनैलिटी के लिए सही करियर क्या है. सो ये सब आपको यूजर से पूछ के समझना है कि, और यही क्वेश्चंस फ्रेम करना ही वन ऑफ द मेन थिंग्स है एक यूएक्स रिसर्चर का. सो ये क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं. गो एंड आस्क एनी क्वेश्चंस अभी के लिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यूजर किस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, एंड वील कम बैक एंड डिस्कस कि क्या क्वेश्चंस अच्छे रहे और क्या बुरे रहे. सो आई एम क्रिएटिंग ब्रेकआउट रूम्स.
Hey guys, welcome back. So, how was the session for you, Shivam and Nupur? How did it go? Shivam, what did you learn? सर बहुत कुछ, जैसे नुपुर ने बोला कि मैं कंफ्यूज थी, मुझे सीनियर ने गाइड किया, तो ठीक है. Please tell us more. What was Nupur's solution to choosing a career? How did she choose a career? सर नुपुर के सीनियर ने गाइड किया कि उसे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी चाहिए, और नुपुर को पहले भी इंटरेस्ट था कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एंड नुपुर को पहले से इंटरेस्ट था कि कैसे करते हैं. यस सर. Okay. Nupur, would you like to tell how did Shivam chose his career? Like I would say that Shivam didn't have much idea, but because of his sister, he was having a great path, and he could see someone experiencing the same thing at the current moment. So, like from his sister's experience, he learned and he went on. Got it. Got it. Sanskar, would you like to share your experience with Tanisha? Sir, she couldn't reply, maybe because of her internet problem. So I don't know about her. Okay. Sanskar, would you like to tell us about your career choice? Like, what are you into currently? I'm doing the BTech in CS currently, but if I would have known that design is there, there is thing like design for the career. I mean, design thing, UX design, UI design. There is animation and there is drawing. There are many things like in design. If I would have known that, I would have definitely chosen that thing. Okay. Yes. Right now, what are you doing? What did you say? BTech in computer science. Okay, BTech in computer science, but you would have chosen. If I would have known design for the career, I would have chosen this. Got it. Chosen design. So, what do you think? What all things would you have known, or how could you have known more about this, which would have made you interested in design? ऐसी क्या चीजें जानते हैं आप? डिजाइन के बारे में या फिर मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में? डिजाइन के बारे में, मतलब आपने जब कंप्यूटर साइंस चूज करी तो आपको ऐसा कौन सा एक्सपोजर अगर हो रखा होता तो आप डिजाइन चूज करते? तो अगर मेरे को मतलब पहले से पता होता कि ऐसी कोई फील्ड है जिसमें हम अपने खुद के आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब वो या फिर ड्रॉ कर सकते हैं और वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, मेरे को सर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही। सर प्रोजेक्ट जब बनाए थे तो डिज़ाइन पूरा मेरा ही था, और 12th में प्रोजेक्ट जमा जो करते हैं उसमें डिज़ाइन मैंने बनाया था, अच्छे से बनाया था। तो मेरा इंटरेस्ट था पहले से, पर मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे को लगता था कि ये कंप्यूटर साइंस में ही आता है, मतलब डिज़ाइन वगैरह हम जो डेवलप करते हैं उसी में ही आता है डिज़ाइन। और मेरे दोस्त को भी ऐसा ही लगता था, पर उसकी काउंसलिंग हुई थी तो उसे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। या फिर और एक और सोल्यूशन हो सकता है सर, हमें मतलब जो स्कूल में होते हैं विदेशों में, मतलब सर कई जगह फील्ड ट्रिप्स होती है, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में, तो उनके आसपास तो उन्हें एक्सपोजर मिल जाता है कि मतलब कहाँ चीज़ क्या क्या हो रही है। राइट। तो सर वो होता तो भी पता चल जाता। Got it. Just a second, man. Got it. Great story, yaar. Sanskar, thank you so much for sharing that. Thank you, sir. Thank you. Nupur, we would come back to you. So you chose graphic designing and you were guided by your senior. Yeah. So do you think it was a good choice, and how did you reach this choice? How I know your senior guided it, but what all did your senior expose you to in terms of like आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे आप यहाँ पे लैंड करें?
like if I would explain this a bit more, so my family really wanted me to do something related to this, either engineering, PCM or PCB, something kind of this, and I really had no interest in it. So if you had heard about DMIT test, have you? Okay. BMIT test नहीं. Yeah. So DMIT test is something that was so popular at that time. I heard that about that multiple times. So उसमें basically ये होता है कि कुछ they take some fingerprints of yours and they create a book out of it, that is like what all you are, what's your interest, and everything. Like that time, I think I was in 11th or 12th, and I was so fascinated by that thing. So I really convinced my mom that I want to get done that thing. So Okay. somewhere one of my school teacher, I knew him, and he used to do that. Okay. तो मार्केट में उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा था, लेकिन everyone was not accurate enough. Everyone didn't give accurate results. So I talked to two people. One gave me the report, but according to my report, उसमें एक सीक्वेंस होता है. वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बताते हैं, लेकिन द एक्चुअल पावर, द एक्चुअल नॉलेज सेज कि उसमें से फिगर आउट करके अगर आपको कोई बहुत एग्जैक्टली बता पाता है, तो दैट इज समथिंग जो DMIT की कैपेबिलिटीज होती हैं. बट जिनसे मैंने DMIT टेस्ट करवाया था, उन्होंने तो मुझे बोला कि आई डू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, एंड दैट वाज समथिंग आई रन अवे फ्रॉम. Okay. So then the mentor, which who was from my school, I contacted him and I told him that I got this test done. Now what can I do? तो उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज था इसका, एंड ही वाज वर्किंग विद सम स्कूल दैट टाइम. इवन उस टाइम पर मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा था. ही वाज वर्किंग फॉर सम स्कूल जो कि बच्चों पर इसी तरह से काम करते कि बचपन से उनको एक एनवायरनमेंट मिले और उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन में उनको बचपन से ही, लाइक व्हेन दे आर इन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, तो दे स्टार्ट गाइडिंग देम अकॉर्डिंगली. So he was having much he was much into these things. So I sent my report to him, and I don't know, out of nowhere he just gave me a name, multimedia marketing. Okay. And that time I was like pata nahi kuch hoga, I'm not sure, I'll see. So but I just knew that I had a few, like I just had an interest in events and advertising thing. So when I met my senior, when I talked to him, he told me that you can do graphics designing, this is about advertising things and all, you will create graphics. I had no idea what is inside graphics designing. I had never heard the word. And he was that time he was also doing the same course, and he was there in the coaching in the institute where he took me to. So Okay. jab when I took my counseling session there at that institute, so I had a 2 to 3 hours conversation with them. उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया, वीडियो एडिटिंग ये वो. तो उसमें से मुझे बस 5% समझ में आया, बट आई वाज लाइक कि ओके, वी कैन ट्राई दिस. आई वाज नॉट श्योर, बट एट द एंड जब आफ्टर 2 hours जो मेरा कोर्स प्रोग्राम का नाम था, दैट वाज एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया. So Got it. I was not sure what exactly is in this, but I was pretty convinced because I was told multimedia marketing somewhere by him, and I pursued this course. So that matched, and Got that's what gave me a bit of confidence, and I continued into this. Got And today it. I'm happy that I'm pursuing the same field. Great. I'm so happy to hear your story. And something that I could observe in this user story is that Nupur got a lot of exposure. She went for this DMIT test. She talked to a few of her seniors and other people experienced in this field. And while there were different choices, like someone told her Max, someone told her multimedia design, someone told her graphic designing. But then because of so much of exposure and talking to different people, she could get perspectives of different things, and she could इंट्यूटिवली फील कि यार नहीं, मैथ्स से मैं मैच नहीं कर रही, इससे मैं मैच कर रही हूँ, ये मुझे सही लग रहा है, मल्टीमीडिया बोला है उन्होंने मुझे, वो उनके दिमाग में क्लिक करता रहा. तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर
she could finally land into something that was apt for her. So that's my interpretation of this user story. But what I get out of it is that that exposure helped, and Sanskar also told us that a friend of his got exposure, got coaching from someone, and other people got exposure to different fields, and thus they could identify the right career for them. But Sanskar landed in a computer science degree, while versus he wanted to be in a design field. Because he probably couldn't get that exposure or talk or कुछ senior से guidance या ऐसा कुछ. So that's my two interpretations of the user stories so far. Shivam, and if someone disagrees or someone has a different interpretation, please write in the chat. Go ahead. Shivam, coming to you, we heard that you said you didn't have much idea, but your sister was in this path and you chose the same. So is it satisfactory for you? How are you doing currently, and what could be different if you wanted something to be different? Hello. Yeah, Shivam. Yes, sir. So it is satisfactory, sir. It is satisfactory, sir. Okay. And how did you decide on this? You saw your sister. What's your current occupation, by the way, or current course that you're doing? Sir, information technology. Okay. And you landed in this because you saw your sister doing the same thing, and you felt connected to this path. Yes, sir. Okay, great. So Shivam got this one exposure, and he felt intuitively connected, and now he feels right on the right path. So while this is not always the case, I mean, if you get just one exposure, but still having that exposure and seeing that, okay, this field might also suit me, help him, is what I understand. Is that right, Shivam? Shivam? Hello, Deepak. We have lost connection with Deepak. Cool, guys. So I'm gonna come back to our stories. So I've recorded all of those stories, and I think we had a great session where we could see that हमने जाके लोगों से बात करी, empathize करा. Shivam has dropped off. I think कुछ problem in his internet. So we discussed with different people, heard their stories, collected their stories. And now we know more of the problem. कितने लोगों को लग रहा है कि हम जहाँ पे थे, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, which is कि करियर चॉइस एक प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझ नहीं आता कैसे करियर चूज करें. बट नाउ वी हैव मच मोर डीपर इंफॉर्मेशन कि लोग कैसे चूज करते हैं, क्या वर्कआउट सही करता है. जैसे किसी के लिए कुछ सही वर्कआउट करा है, नुपुर के लिए सही वर्कआउट करा है. While Sanskar says he would have joined a design course, a design field, if he would have known better. So किसी के लिए नहीं वर्कआउट करा है, तो क्या कितने लोगों को लग रहा है कि we could get much deeper information, deep लिखिए, deep, if you feel that. Because of this empathizing exercise that we did, talking to different people, asking questions, we know much more now. What do you feel that? Sanskar says deep. Nupur says yes. Right. Great. Tanisha, I'm not sure if Tanisha is able to hear us or not. Tanisha, can you type in the chat if you are available? Cool. So guys, तो हमने ये यूजर स्टोरीज कलेक्ट करी. हम वापस जाते हैं अपने एम्पैथाइज वाले उस पे कि हमें यूजर से बात करनी थी, स्टोरीज कलेक्ट करनी थी, हमने क्वेश्चंस पूछे, सर्वे करनी थी. हमारे पास ऑडियंस नहीं है. नाउ अभी क्या होता है कि अभी हम ऑब्जर्व, तो हम एक लॉन्गर जर्नी है जहाँ पे हम यूजर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. से अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रोज जब वो आता है यूज करने. और जैसे हॉटजार इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है जहाँ पे वो मेरी ऐप के अंदर या उसके अंदर क्या कर रहा है वो रिकॉर्ड करके मैं समझता हूँ, अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो, विच इज मच ईजियर. और अगर जैसे ये करियर प्रॉब्लम है, मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है, तो मैं उनके बीच जाके बैठने लग जाऊंगा, थोड़े दिन में वहीं बैठूंगा, उनसे बातें करूंगा. दैट इज ऑब्जर्वेशन.
यूजर स्टोरीज हमने इस तरह से डायरेक्ट बात करके कलेक्ट करी, क्वेश्चंस हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करे और समझा कि हम यूजर से क्या पूछ के निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सर्वेज हम कब रन करते, सो अब हमारे पास यूजर स्टोरीज के अंदर हमें पता है कि एक्सपोजर हेल्प, एक्सपोजर डिडंट हेल्प, गेटिंग इनके बाद एक्सपोजर था, तो अभी हम सर्वे किस तरह का रन कर सकते हैं, डिड यू गेट इनफ एक्सपोजर, डिड यू गेट इनफ एडवाइस, सीनियर से बातें हुई आपकी, एक्सपीरियंस लोगों से बातें हुई क्या, एंड आर यू सेटिस्फाइड विद योर करियर। इस तरह का अगर हम एक सर्वे रन करें तो हमें पता पड़ेगा कितना इंटरकनेक्शन है इसके बीच। जो हमने यूजर स्टोरीज के बीच एक पैटर्न समझा है वो हम ऑन अ वास्ट ऑडियंस 100 लोग 200 लोग पे सर्वे रन करके देख सकते हैं कि कितना कनेक्शन है। सो इस तरीके से हम पहुंचते हैं प्रॉब्लम की कोर पे, और प्रॉब्लम की कोर पे पहुंचते पहुंचते आप देखिए कि हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। सॉल्यूशन क्या मिला कि अगर मैं इन यूजर स्टोरीज कलेक्ट करके अपना एक सॉल्यूशन क्रिएट करूं, तो लेट मी जस्ट डू दैट, लेट मी जस्ट राइट सम आइडियाज हियर, एंड आई वुड लाइक कि सब कुछ आइडियाज कंट्रीब्यूट करें। तो संस्कार, नुपुर, you guys are live here, tell me how can we solve this career choice problem। आपको 12th में एक ऐसी क्या चीज करने को मिल सकती थी, स्टैंडर्डाइज्ड आपके स्कूल में सबके लिए क्या ऐसा हो सकता था जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, या जिससे आपको बेटर करियर चॉइस करने को मिलता 12th में या 10th में, whenever you feel, please write that idea in the chat box, or if you want to come on stage and share, please do that। Nupur says, I really wish someone could listen to me। So by listening you mean, okay, counseling, Sanskar also says counseling, so Nupur says listening, counseling, Sanskar says, okay, I'm just gonna remove the name and just write the idea, career counseling। तो guys ये बताओ, everyone used to give their preferences which I didn't want, right? सब बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, बट आपकी नहीं सुन रहे हैं लोग। नुपुर बोल रही है मेरी सुन के मुझसे पूछो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे समझो, गॉट इट। सो जहां जहां जो कोच काउंसलर अच्छे कोच काउंसलर कर पाते हैं, आई गॉट इट। अब व्हाई डोंट पीपल डू इट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड थिंग? ये तो हमें समझ आएगा कि काउंसलिंग से सही होगा ये चीज प्रॉब्लम, बट लोग 10th 12th के बाद स्टैंडर्डाइज्ड वे में अपने बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं करवाते, या स्कूल्स क्यों नहीं करवाते? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम देयर? सर शायद वो एक्स्ट्रा की तरह देखा जाता है, इसलिए मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि सेटेड पाथ है, लोग वही कर रहे हैं, राइट राइट तो इसलिए एक रीजन ये हो सकता है। right? Schools are busy enough to get the courses done, exams। Schools का अपना प्रॉब्लम है, priorities, right? तो अभी आइडिया समझने के बाद हम सोच रहे हैं कि why not standardized it across। तो कुछ जो बातें सामने आई कि एक्स्ट्रा मनी है इन्वॉल्व, एक्स्ट्रा ऑप्शनल लिखा जाता है इसको, कोई स्टैंडर्डाइज वे में ये पाथवे में बना हुआ नहीं है, स्कूल्स की अपनी वैरायटीज है, पेरेंट्स ऑफ लास्ट जनरेशन को इसके बारे में पता ही नहीं है, पेरेंट्स डिडंट हैव दिस एक्सपोजर ऑफ व्हाट इज this career and how helpful it is। तो इवन अगर थोड़ा बहुत सुना भी होता है तो लोगों को इतना नहीं पता होता कि कितना डीप लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट की लाइफ, पूरी लाइफ आपकी इस चीज से, आपके नेक्स्ट 4 इयर्स जहाँ आप डिग्री करेंगे उसके बाद जो आप जॉब्स करेंगे सब कुछ इससे इम्पैक्ट होगा, और कितना सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में इससे इम्पैक्ट होगा। तो ये सब पता ही नहीं होता कि करियर काउंसलिंग इतना डीप सॉल्यूशन है, इतना मतलब इतना अच्छा सॉल्यूशन है अगर सही करियर काउंसलिंग काउंसलर के पास जाया जाए।
और एक्स्ट्रा मनी और इन्वॉल्व रहता है, वो सब भी देख के बहुत बार लोग, क्योंकि ऑप्शनल चीज है तो लोग चूज नहीं करते। पीपल यूज टू थिंक वॉट एवर यू स्टार्ट टू डू विल स्टार्ट गिविंग इंटरेस्ट। तो यस, वेरी राइट नुपुर। तो उनके हिसाब से पेरेंट्स या रिलेटिव्स को लगता है कि भाई जो करोगे इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें, इंटरेस्ट विल कम लेटर। जबकि अपन बोल रहे हैं कि भाई पर्सनालिटी के हिसाब से राइट इंटरेस्ट राइट जॉब एग्जिस्ट करती है। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग इस कंक्लूजन्स पे आ पाए। एंड आप देखें तो हमें सॉल्यूशन भी निकल के आ रहा है कि भाई करियर काउंसलिंग को किस तरीके से करियर काउंसलिंग एग्जिस्ट कर सकता है कि भाई स्कूल से टाई अप हो, जहाँ पे स्कूल ही स्टैंडर्डाइज वे में से करा रहे हो ताकि सारे बच्चे कर रहे हो, और स्कूल ही उसकी जो मनी इन्वॉल्व है वो अपनी मनी उसके मतलब उसके अंदर स्कूल ही मनी। तो मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन आ रहा है कि अगर मैं से एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट सिस्टम बनाऊं जहाँ पे टेस्ट हो रहा है बच्चे की, और फिर उसके बाद एक काउंसलिंग हो रही है, और 500 रुपए पर स्टूडेंट इस तरह का कुछ बजट है इसमें। जो टेस्ट तो क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं करेगा वंस द सॉफ्टवेयर में, बट उसके बाद जो पर्सनलाइज काउंसलिंग है वहाँ पे उस सेशन की कॉस्ट हो जाएगी, जो कि से अगर एक काउंसलर है जिसको हमने रख रखा है, जिसको हम रोज के 4 सेशन दे रहे हैं और महीने में उसको इस तरीके से 40 सेशन मिल रहे हैं, और हर की कॉस्ट अगर 500 रुपए है तो 20,000 रुपए वो कैरियर काउंसलिंग से कमा पा रहा है। सो राइट ऐसा ही हो 4 सेशन इंटू 80 सेशंस इंटू 500 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए, विच इज ओके कि 40-50 हजार रुपए देके हम एक करियर काउंसलर हायर कर सकते हैं। तो इस तरीके हमने करियर काउंसलर्स हमारे सिस्टम में रखे। ये हमारा पहला ऐप सिस्टम है जहाँ पे सारे स्कूल्स ने ये 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए इन द 12th क्लास टू देयर। और जब स्कूल अगर स्टैंडर्डाइज्ड वे में कुछ करता है तो पेरेंट्स ज्यादा एग्री भी कर लेते हैं और करने के लिए एग्री हो जाते हैं, वर्सेस अगर इंडिविजुअली उनको अप्रोच करा जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बदली जा सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, जहाँ पे राइट स्टूडेंट को राइट करियर दिखाया जाए। अगर DMIT जो तरीका है उसको भी मैंने एक्सप्लोर नहीं करा कभी, बट अगर ऐसा कुछ तरीका है तो इस तरीके भी हम ला सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को राइट जगह पे पुश करा जाए। तो कितने लोगों को लगता है कि ये एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम? ये सॉल्यूशन एक प्रोटोटाइप करा जा सकता है, टेस्ट करा जा सकता है, हम स्कूल के साथ बात कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एक सर्टेन ऑडियंस पे। पर्सनैलिटी टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिससे राइट करियर चॉइसेस बताई जाती है। तो वहां पे तो वो एज अ फ्री या बहुत 49 रुपीज पर स्टूडेंट भी देके विदाउट करियर काउंसलर को उसमें लाए हुए, पिक्चर में लाए हुए, हम स्टूडेंट्स को वो टेस्ट तो आसानी से करवा सकते हैं। जस्ट क्योंकि स्टूडेंट्स का एक्सपोजर नहीं है, ये टेस्ट होता है, पेरेंट्स और स्कूल्स करवा नहीं रहे हैं, तो हम ये स्कूल्स के साथ टाइप करके एज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर करवा सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि नुपुर एंड कौन कौन है हमारे साथ अभी? नुपुर है, संस्कार है, और तनीषा है। तो आप लोग क्या लगता है कि अगर इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को आगे पुश करा जाए, इस प्रोडक्ट को, तो वर्क कर सकता है? प्रोटोटाइप लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि वी कैन प्रोटोटाइप समथिंग on this lines. Nupur says prototype. संस्कार says prototype. Great. Cool. अगर नहीं लग रहा हो तो नो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रोटोटाइप बोलना। बट अगर आप लोग को लग रहा है, आपने प्रोटोटाइप बोला है और आपको लग रहा है, तो now our journey, our next, this whole internship, our journey, we can learn through this product जो हम create कर सकते हैं। And we have Nupur and Sanskar, तो आप एक टीम में भी आ सकते हैं if you want a team approach. Not sure if you want to collaborate, please type in collaborate. If you want to do it individually, please type in individual. That's your choice. अगर दोनों collaborate लिखेंगे तो we can also put you in a team, or put you with someone else, whoever you want, or you can create your own team if you have other people you know of. So Nupur says collaborate, Sanskar says collaborate. Great guys. So guys,
और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि संस्कार ने एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ एक्सपोजर, और संस्कार एक ऐसे फील्ड में लैंड करा जहाँ पे संस्कार wanted to be in design field, and Nupur because she got the exposure she landed in the right field. बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. नाउ वी नो द सॉल्यूशन, वी नो द प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम एरिया भी सॉल्यूशन एरिया भी है. अभी हमें सारे जो स्टूडेंट्स उनको हेल्प करना है. सो वील क्रिएट अ सॉल्यूशन, वील क्रिएट अ मॉकअप. हमारा कैसा मॉकअप बनेगा, क्या हो सकता है, इस पे आइडिएट करना है आपको जाके नुपुर एंड संस्कार. अगर आप लोग एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं जानते तो यू कैन प्रॉब्ली एक्सचेंज फोन नंबर और ईमेल आईडी और समथिंग लाइक दैट, एंड प्रॉब्ली गो बैक एंड कोलैबोरेट कि क्या सॉल्यूशन बन सकता है. एंड कोलैबोरेशन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो आइडियाज फ्लोट करेंगे ब्रेनस्टॉर्म करते हुए, एंड यू विल क्रिएट बेसिक आइडिया जो हमने चालू करा है जहां से, वहां से आप उसको और बेटर फाइन ट्यून करेंगे. तो फाइन ट्यून करने का प्रोसेस है हमारा यूएक्स प्रोसेस, जो हमने समझा. यूजर से जाके बात करो, आइडिएट करो, और फिर जो समझ आया उसको मॉकअप बनाओ, उसको टेस्ट करो. जनता से टेस्ट करेंगे हम, जाके जनता से पूछेंगे कि भाई ये वर्क कर रहा है क्या. मतलब इफ 12th क्लास की ऑडियंस से पूछेंगे कि डू यू वांट समथिंग लाइक दिस, कि आपने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया, उसके बाद आपको रिजल्ट आ गए कि दीज आर द 3 करियर्स दैट यू कैन ट्राई. और उस करियर्स को जब आपने क्लिक करा तो आपको एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गया कि इस करियर के अंदर ये होता है, जो उसको करियर के अंदर है वो उसके बारे में बता रहा है. तो एक्चुअल एक्सपोजर भी आ गया. तो इस तरीके से आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे एक 3 स्टेप जर्नी हो गई. फर्स्ट असेसमेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सेकेंड स्क्रीन पे करियर चॉइसेस, और थर्ड स्क्रीन पे जो करियर वो क्लिक करे उसके बारे में एक वीडियो जिसमें उस करियर के बारे में जो भी उस करियर में है वो एक्सपोजर दे रहा है कि भाई इस करियर में होता क्या है. तो दिस कैन बी अ जर्नी जहाँ पे एवरीवन कैन फाइन ट्यून द राइट चॉइस ऑफ करियर. सो बट आप लोग और डिस्कस कर सकते हैं और इस बारे में और इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं. So guys, please share your probably email ID and I'll connect you guys on a thread. आप दोनों की email ID if you could share, I'll connect you on a thread and जहाँ पे आप अपना discussion चालू कर सकते हैं. And I will be on that thread so I can also see कि how's the discussion going. Please type in your email ID. ठीक है, नुपुर I have your email ID. संस्कार आप भी अपना email ID डाल दीजिए ताकि ठीक है. I'll initiate a thread between you guys. Cool. So अभी तक गाइस हमने देखा कि भाई हम कुछ यूजर स्टोरीज पे पहुंचे, कुछ हमने आइडियाज समझे. अब हम बात करने वाले हैं. सो क्विकली मैं आपको एक और कंसेप्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच इज यूजर सेंटर्ड डिजाइन. तो अभी तक हमने जो भी सारा करा, अगर आप देखें तो हमारा फोकस था यूजर सेंटर्ड डिजाइन पे, कि यूजर को समझ के, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, कौन है हमारा यूजर, हु समझना, और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना. तो हमारा फोकस जो है एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर हमेशा यूजर सेंटर डिजाइन पे रहेगा. हम यूजर्स और तरीके होते हैं, स्टेक होल्डर, बिजनेस प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी, फिजिबिलिटी को देखना, पर यूजर सेंटर डिजाइन में हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखने वाले हैं. क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हायर करे जाएं, आपका स्टेटमेंट या आपकी इनर फीलिंग ये है कि व्हाइल यू हैव हायर्ड मी, व्हाइल यू आर गोना पे द चेक टू मी, बट मेरा धर्म ये है एज अ यूएक्स यूआई डिजाइनर, मेरा धर्म ये है कि आई एम गोना सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द यूजर. जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे सो ऑटोमेटिकली आप उस बिजनेस को और उन स्टेक होल्डर्स को बहुत फायदा पहुंचा रहे होंगे. क्योंकि इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द यूजर, योर बिजनेस इज गोना सक्सीड. That's the secret that everyone knows, but a lot less people follow. So इसलिए हमेशा यू अपने यूजर से बात करते रहें और यूजर को समझे, यूजर से एम्पैथाइज करें और वहां से सॉल्यूशन निकालें. एंड अगेन वापस मैं ये बोलूंगा कि यूजर की सिर्फ बात नहीं सुननी है, उसने क्या बोला है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है या क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता सॉल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम को फिर बता सकता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट क्या सॉल्यूशन है उसको क्लियरली नहीं पता होता. यूजर सॉल्यूशन बताएगा बहुत बार, और उसको नहीं समझना, हमें उसे ऑब्जर्व करना है और वहां से सॉल्यूशंस निकालने हैं. जैसे हमने मिल्क वाला आइडिया डिस्कस करा.
इसके आगे हम यूजर पर्सोनास और डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए काफी हैवी हो जाएगा, तो वी टेक इट अहेड इन द नेक्स्ट क्लास। हमारा असाइनमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। हमारा असाइनमेंट क्लास के लिए ये है कि हमें अभी मॉकअप बनाना चालू करना है। हमें अपने आइडिया को, तो अभी आपने वायर फ्रेमिंग सीखी लास्ट क्लास में कि पेपर पेन पे कैसे बनाना है, तो वहां से चालू करना ही है। आपको पहले स्केचेस बनाने हैं, यूजर से जाके बात करनी है कि भाई ये स्केचेस हैं, ये इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। आप 12th क्लास के लोगों से, कॉलेज स्टूडेंट से बात करें, आपके कजिन्स होंगे, जूनियर्स होंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं कि ये आपको हम करियर, आपका राइट करियर चॉइस मीट करवाने में आपको इस तरह से हेल्प करने वाले हैं। आप वो पेपर स्केच दिखाएं, अगर पेपर स्केच वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम उसको Adobe XD में रियल स्क्रीन्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, रियल प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, और वो प्रोटोटाइप जाके यूजर से टेस्ट करवा सकते हैं ऑन अ स्केल लेवल, क्योंकि प्रोटोटाइप का लिंक होगा जो आप अपने व्हाट्सएप पे 100 लोगों को भेजे और वो टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कैसा है। बट इनिशियली स्केच से चालू करना है इसको। तो ये स्केच बना के जिस थ्रेड पे हम क्रिएट कर रहे हैं, उस थ्रेड पे आपको ये स्केचेस अपने शेयर करने हैं, इनिशियल स्केचेस, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करना है लोगों से बात करते हुए। जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपको उस थ्रेड पे, उस ईमेल थ्रेड पे डालने हैं कि क्या यूजर क्या कह रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे। असाइनमेंट अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप इन यस। अगर एक्साइटेड है असाइनमेंट के लिए तो टाइप इन एक्साइटेड। will we be having a common mock-up? Guys, आपको वाइल कोलैबोरेट करना है, डिस्कस करने हैं आइडिया जिससे आप आगे बढ़ा पाए, पर आप दोनों अपने अपने मॉकअप्स बना रहे होंगे। हो सकता है वो सेम मॉकअप्स बने अगर आप सेम आइडियाज पे एग्री कर गए। अगर थोड़ा बहुत डिसएग्री करते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर आपके मॉकअप्स अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पर मॉकअप दोनों को स्केच करने हैं, और वहां पे हम देखेंगे कि अभी इसमें इस मॉकअप में किस आइडिया को हम दोनों को पिक करके और कैसे कोलैबोरेट करके बेटर एक आइडिया बना सकते हैं। तो मॉकअप दोनों को बना रहे हैं क्योंकि एज अ प्रैक्टिस आप दोनों को ही सीखना है स्केचिंग करना। या कॉमन भी मतलब हो सकता है सेम निकल के आए, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इट वुडंट मैटर। So please go ahead guys, I'm so excited that you guys are going to be collaborating. I'll start a thread between you guys, and looking forward to seeing you in the next class. Hope this was a good class, added value to you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.